Okay, so let me summarize what I just said. So magnetism is a property, okay, possessed by iron steel metals which attracts magnetic materials. Okay, and when suspended freely, it points in the direction of the Earth's magnetic field. Correct? Okay. We also discussed what is true direction. True direction is the direction that points directly towards the geographical North Pole. Okay. Uh, okay. Now, what do you know about Earth's magnetic field or Earth's magnetism? Whatever have you learned so far in these years in class, जो भी आप स्कूल में पढ़ते थे, अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में आपको क्या क्या पता है? जो पता है बोलिए फटाफट से, पार्टिसिपेट। भाई बेसिक होता है यार, ये तो 7th 8th में पढ़ाया होगा, ऐसे नहीं करना। Sir, it has two poles. They are attracted to each other, ओके। and the magnetic field is located in the center of the Earth. Earth's magnetic. There is a magnetic field which starts from north and ends at south, and inside the magnet, it is the vice versa of this direction. Like it moves from south to north, and two magnetic lines cannot collapse or cannot collide with each other. Okay, nice. They do make an angle of 90 degree with that respective magnet. Okay. And these two poles, be it north or be it south, they cannot exist in a separate way. Like they will always exist in they will exist they both will exist together. Like we cannot separate a north and south. And yeah, these are some of the properties which I remember from my 12th. ये 12th में पढ़ाते हैं क्या? Huh? ओ नहीं, मैं कोविड बैच में नहीं, मैं यूट्यूब देख रहा था 28 का बस। ओके, सो अर्थ्स मैग्नेटिज्म या टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म के बारे में हम कुछ कह सकते हैं। क्या चीजें हैं? दैट जैसे एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, वैसे अर्थ की भी मैग्नेट। तो जो प्रॉपर्टी एक मैग्नेट की होगी, इसकी भी है। थोड़ा सा फर्क ये है कि अगर आप एक मैग्नेट लेते हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज दिस इज अ बार मैग्नेट, तो ऊपर नॉर्थ पोल होगा, नीचे साउथ पोल होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, 1 डिग्री का डिफरेंस होगा। अर्थ पे ये चीज ना ऐसी नहीं है। अर्थ पे अगर नॉर्थ पोल ऐसे है, साउथ पोल ऐसे नहीं है, हल्का सा ऐसे। तो दे आर नॉट एंटीपोडल, मतलब ऐसा नहीं है कि एक वन स्ट्रेट लाइन है पूरा, वो हल्का सा ऐसे। जिन्होंने एंटीपोडल पॉइंट्स पढ़े हैं ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर नॉट एंटीपोडल पॉइंट्स। जिन्होंने एंटीपोडल पॉइंट्स नहीं पढ़े हैं, टेंशन मत लो, इट इज नॉट ऑपोजिट टू दी लाइक ईच अदर, दे आर स्लाइटली लाइक दिस। ठीक है, दैट्स ऑल यू नीड टू नो। अभी एंटीपोडल पे अपना दिमाग मत मारो कि वो हमने पढ़ा नहीं किया है, कुछ नहीं। What is the methane IgJPE? Okay, one thing that I need to tell you beforehand, that I made these notes while I was teaching a class, so writing can be pathetic. Okay, so in any page, any word that you're not able to understand, please point it out so I can correct it. Then, okay, बहुत खराब है, मजेदार। हाँ? Is it bearable? Do you need to squint your eyes to see it? Visible? Okay, thank you. So we have studied magnetism, property possessed by metals. Okay, Earth's magnetism. Now, Earth's magnetic field also behaves as if there is a very powerful bar magnet located in the center of the Earth. तभी उसमें magnetic properties भी हैं. Correct? Okay. Now, the magnetic pattern is in north-south sense. That is, North Pole and magnetic South Pole are not antipodal. Antipodal का मतलब होता है यार एक दूसरे के एकदम opposite नहीं है, हल्का सा ऐसे. It's like this, not perfectly like this. ठीक है? Okay. Now, do you know one fact? Do you know one fact? For example,
if this is my magnetic north pole, blue wala, and suppose that white wala is my geographical north pole, ठीक है? क्या आपको पता है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ना, इट इज नॉट स्टिल, इट slowly rotates around the true north. अगर ये मेरा ट्रू नॉर्थ पोल है तो वो ऐसे ऐसे घूमता है, and that movement is very slow. What is the current position of north pole? The current position of north pole is located 750 nautical miles from the north pole in North Canada. मतलब जो नॉर्थ पोल, मतलब जो हमारा नॉर्थ पोल है ना, एक्सिस वाला, उससे 750 नॉटिकल माइल दूर नॉर्थ कनाडा के आसपास अभी मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ है राइट नाउ, एंड इट चेंजेस वेरी स्लोली, लाइक वेरी स्लोली. ठीक है. नाउ वी कैन सी वन थिंग, दैट जो मेरा ट्रू नॉर्थ है और जो मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ है उनमें डिफरेंस आ गया. करेक्ट. इफ आई कैन एक्सप्लेन टू यू हियर, हमने पढ़ा था any direction that points towards the geographical north pole is my true direction. Let me draw the geographical north pole like this, slightly tilted on the extreme points of the axis around which the earth spins. Correct? This is my geographical north pole. अब हम एक काम करते हैं, यहीं पे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल भी बना देते हैं, ऐसा सा बने, और इसी का सदर्न वर्जन कुछ ऐसा सा बने. Correct? Now these are not perfectly antipodal like this, थोड़ा से ऐसे हैं. ठीक है. So let me mark this point as my magnetic north pole. Magnetic north pole. Now can you see these two directions or points are different? Correct? For instance, let's draw the magnetic field lines. बनाए तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाएगा, तो ऐसे 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 जाएगा, बीच से भी जाएगा, एंड इसके ऊपर से भी तो जाएगा ना, जाएगा ना. अब मैं यहाँ पे दो जहाज बनाता हूँ, एक जहाज है ये और एक जहाज ये. ठीक है. One aircraft is pointing like this, and another aircraft is pointing like this. चलो, is there any difference? Are they both pointing towards my same north? No. They might feel that they are going parallel. Correct? Now, how about this? How about this? Or like this. Now, do you feel like they are going parallel to the direction? No. This is facing the direction of true north. Is it? कौन कहता है हाँ? That aircraft A is facing
True or not? Raise your hands. Who says yes? Everybody. That is correct. एयरक्राफ्ट बी भी तो नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है या नॉर्थ की तरफ जा रहा है, राइट? जब हम डायरेक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे, आई टोल्ड यू वन थिंग, वी ड्रॉ दिस थिंग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड वी टेक नॉर्थ एज व्हाट? वी टेक नॉर्थ एज 0 0 0 एज आवर रेफरेंस. तो क्या दोनों के हेडिंग्स इस समय 0 0 0 है? बिकॉज दोनों अलग अलग नॉर्थ पे. अब सब हो गए कंफ्यूज. नाउ दैट इज व्हाई आई हैव टू सेपरेट पोल्स एंड इट डिपेंड्स कि मैं कौन से पोल को रेफरेंस लेके अपने डायरेक्शंस को कैलकुलेट कर रहा हूं. ठीक है, अब मैं यहीं पे एक काम करता हूं. ठीक है, हमें यहाँ पे करें ना. लेट्स सपोज मैंने आपसे कहा कि मेरा ट्रू नॉर्थ कुछ ऐसे है, तो मेरा ईस्ट कहाँ पे होगा? मेरा ईस्ट यहाँ पे होगा. इफ द ATC told the aircraft to fly the direction of 0 9 0, my aircraft will follow this path certainly. तो वो जहां पे भी होगा वो घूम, अगर वो जहां ऐसे भी जा रहा होगा ना, इफ ही इज आस्क्ड टू फ्लाई 0 9 0, वो अपने आप घूम के ऐसे फ्लाई करने लगेगा. प्रोवाइडेड क्या कि मेरा 0 9 0 यहां से मेजर हो रहा है. समझो मेरी बात ना. अगर इसी चीज को मैं यहाँ पे सुपर इम्पोज कर दूं तो मैं सॉरी यहाँ पे करूंगा. ठीक है भाई. सो अब अगर मुझे बोला जाए कि भाई साहब आप ईस्ट जाइए, फ्लाई ईस्ट, हम क्या करेंगे? हम अपना जहाज घुमाएंगे और ऐसे जाएंगे इन दिस डायरेक्शन, राइट? एंड अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं यहाँ जाऊंगा. करेक्ट. डायरेक्शन तो सेम है ना, जगह अलग है, डायरेक्शन तो सेम है ना. समझो मेरी बात. ठीक है, बट अब अपने पास दो पोल्स हैं, एक मैग्नेटिक पोल भी. अब मैग्नेटिक पोल को हम बनाते हैं ब्लैक से. ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक पोल से अगर ATC ने कहा कि भाई साहब आप जाइए 0 9 0, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे? तो हम ऐसे अप्लाई करेंगे, हम ऐसे अप्लाई करेंगे. करेक्ट. सो कैन यू सी अ डिफरेंस? Only see these two lines and these two lines. Let's suppose my aircraft by default on its own is following a path, and the path is this. This is the path of the aircraft. ठीक है? तो ये ले लो भाई. My aircraft is, अब उसको किसी ने कुछ नहीं कहा, वो अपने आप बस फ्लाई कर रहा है ये डायरेक्शन. Can we assume that? Can we assume that? Okay. ना जहाज बना देते हैं. अगर ATC पूछता है सर व्हाट इज योर हेडिंग, तो आप उसको पूछोगे व्हाट डू यू वांट? डू यू वांट माय ट्रू हेडिंग और डू यू वांट माय मैग्नेटिक हेडिंग? हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं होती. ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, मैंने जवाब दे देना, मैं तेरे गुरु बनने पे. ठीक है, तो अगर वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज योर ट्रू हेडिंग, तो ट्रू हेडिंग के लिए इफ यू टेक रेफरेंस फ्रॉम द ट्रू नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, वहां से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा दिस इज 0 9 0, तो जब भी मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, मेरे जहाज का हेडिंग इंडिकेटर मुझे क्या दिखा रहा है कि आई एम फॉलोइंग दिस डायरेक्शन. दैट इज माय ट्रू हेडिंग. हेडिंग को हम HDG लिखते हैं. ठीक है, T इज फॉर ट्रू. आप पूछता है ATC, नहीं सर मुझे तो आपका मैग्नेटिक हेडिंग चाहिए. अच्छा अच्छा, आपको मैग्नेटिक चाहिए. अगर मैंने अपनी ट्रू हेडिंग
ट्रू नॉर्थ पोल से रेफरेंस करी तो मैग्नेटिक हेडिंग कहाँ से रेफरेंस करूंगा? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से रेफरेंस करूंगा। ठीक है ना भाई, एकदम बराबर की बात है, पते की बात है। ठीक है, यहां से अगर मैंने ये एंगल मेजर करा, इज इट 90? कैन आई से इट 110 120? यस। तो मेरा मैग्नेटिक हेडिंग क्या है? 110 110 इज माय मैग्नेटिक हेडिंग। किसको ये कंसेप्ट समझ में नहीं है? क्योंकि आगे जो भी हम पढ़ने वाले इसी के ऊपर बेस सर करेंगे। जैसे हाँ पृथ्वी बताओ। नॉर्थ पोल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की डायरेक्शन क्या होती है? बहुत सुंदर सवाल करा। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की डायरेक्शन वो होती है जिस डायरेक्शन पे मेरा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पॉइंट करता है। कहानी द डायरेक्शन द डायरेक्शन in which a freely suspended magnet points is my true north. अब if you have to elaborate this, इसमें आप ऐड कर दो a bar magnet when freely suspended, okay, when it aligns itself with the Earth's magnetic field, it points or it shows the magnetic north pole. Okay, so what did we learn today as of now? True north pole तो एक ही है, वो फिक्स्ड है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल घूमता है। इंटरेस्टिंग है वो बंदा। Now, can we see a difference, a visible difference of 20 degrees? This is the difference between my magnetic north pole and my true north pole. इस difference को हम कहते हैं variation. You guys might have heard this term in a lot of questions. Variation is 3 degrees, variation is 8 degrees. ये होती है variation. Is this diagram helpful to you? Please draw it in your notebooks as well. Or if you are kind of my kind of guy, इसका स्क्रीनशॉट लो, प्रिंट आउट निकाल के चिपका देना नोटबुक। This has more colors, more details in it. Otherwise, you can draw it by yourself. चलो भाई आगे चलते हैं। चलो, okay. Now, what is magnetic north? It is the horizontal direction indicated by a freely suspended magnet influenced by Earth's magnetic field. पृथ्वी समझ में आ गया magnetic north क्या होता है? अच्छा, आपको पता है कि ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है कनाडा के आसपास है, पंजाब भी वहीं पे पूरा, और ट्रू नॉर्थ पोल अपना एक्सिस पे। ठीक है, सो ये जो वेरिएशन है, क्या ये वेरिएशन चेंज हो सकता है? The angular difference between true north and magnetic north at any point. तो अभी के लिए assume करते हैं कि मैग्नेटिक नॉर्थ भी वहीं पे फिक्स्ड है। नाउ अगर मेरा ट्रू नॉर्थ फिक्स्ड है, मैग्नेटिक नॉर्थ भी फिक्स्ड है, तो क्या इनके बीच का एंगुलर डिफरेंस हमेशा एक ही चीज रहेगी, कांस्टेंट रहेगा? दोनों चीजें अर्थ पे हैं, दोनों का एंगुलर डिफरेंस सोचो। मैंने बोला मैग्नेटिक नॉर्थ भी फिक्स्ड है, ट्रू नॉर्थ भी फिक्स्ड है, क्या डिफरेंस सेम रहेगा? हाँ पृथ्वी सेम रहेगा ना भाई। अगर मैं यहाँ पे हूँ, ये बॉटल यहाँ पे है, हम दोनों के बीच के दरमियान 30 सेंटीमीटर का फर्क है ना, मैं हिल रहा हूँ ना बॉटल हिल रही है, तो डिफरेंस तो फिक्स ही रहेगा ना। बट यहाँ पे यार मैं एंगुलर डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। आप लोग माइंड फुल करते हैं। सो तो सब रहेंगे सुबह सुबह, डायग्राम बनाते हैं नया, स्टडी करते हैं हम वेरिएशन। This diagram is big enough for you to understand things.
and please let me know if at any time my video is lagging or my voice is lagging. Okay, I can fix it. I will fix it. Now, I will not be drawing the axis of rotation, but for instance, let's suppose this is my geographical north pole. Okay, and this is how the bar magnet is lined up. So this is my magnetic north pole. ये मैंने रेड से बनाया हुआ. Any doubts in this? Very basic diagram. Okay. So, can there be a difference in variation? Think of if my aircraft is flying like this. अगर मैं ट्रू डायरेक्शन के हिसाब से देखूं तो व्हाट इज दिस डायरेक्शन? क्लोज टू 70 degrees. Who all thought it should be 90? किसको लगा कि ये 90 होना चाहिए? Shreyas, I can't see you. You're only ball visible. Nice. Thank you. Yashika. किसको लगा कि ये 90 डिग्री है? Be open, ना? Who all thought? Raise your hands. किसी को नहीं लगा? सारे स्मार्ट हो गए. किसी का तो कैमरा ऑफ खुला था भाई कुछ बोलने के लिए. बोलो बोलो बोलो. देखो अभी मेरा जोग्राफिकल नॉर्थ पोल तो ऐसे है ना. यहाँ से मेजर करूंगा तो इट इज नॉट 90. 90 ये है. This is somewhat 80. Correct? So if what is true north? Direction pointing towards geographical north pole. यहाँ पे the direction is this. Okay. तो यहाँ से this direction कितना हो गया ये? 080 डिग्रीज. म्हणजे मैं जहाज में बैठा हूँ, मैं जहाज चला रहा हूँ, मेरे को सामने स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है 080 डिग्री. Sipping my coffee, cruising, chill out. What is magnetic north? Horizontal direction indicated when a bar magnet is suspended free and is under the influence of earth magnetic field. अब ये जो magnetic field है ये ऐसे ऐसे से भी है, ऐसे ऐसे से भी है, ऐसे ऐसे से भी है. तो मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ क्या हो गया? ये हो गया. बराबर है? पक्का पक्का 100%. कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना कोई? तो मेरा ये डायरेक्शन कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली 110. 110 ले लेते हैं. 110 ले लेते हैं. ठीक है. 110 degree. So this variation right now is how much? 30 degrees. Can I say it? Yes, variation is 30 degrees. My point was to ask you कि क्या हमेशा से ये variation इस डायग्राम में 30 degrees ही रहेगी? क्या ये हमेशा 30 ही रहेगी? हमेशा. क्यों? और अगर अलग होगी तो अलग क्यों होगी? व्हाट इज योर प्रोबेबल रीजन जो दिमाग में आ रहा है कि ना क्यों बोला? हाँ कौन बोल रहा है? Sir, can you repeat once? मैं कह रहा हूँ कि इज दिस वैल्यू ऑफ वेरिएशन विल रिमेन सेम थ्रू आउट द मैप, थ्रू आउट द अर्थ? कौन कौन हाँ बोल रहा है? कोई हाँ नहीं बोल रहा. आयुष इज सेइंग यस, पृथ्वी इज सेइंग यस. कौन कौन ना बोल रहा है कि नहीं सेम ही है? आई बिलीव अगर एयरक्राफ्ट सेम डायरेक्शन में क्रूज कर रहा है तो सब कुछ वेरिएशन सेम ही रहेगा, बट अगर इसका हेडिंग में चेंज होता है देन इट विल चेंज. तो अगर इसी पॉइंट पे मैं जहाज का हेडिंग चेंज कर दूं तो आप कह रहे हो वेरिएशन चेंज हो जाएगी. करेक्ट? हाँ. अच्छा लेट्स सपोज नहीं, बट वेरिएशन तो डिपेंड कर रहा है कि ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ किधर है ना. वो एयरक्राफ्ट
एक मिनट, एक अभी मेरा जहाज जा रहा है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है शेष? द डायरेक्शन हैज चेंज्ड, करेक्ट? Perfect. Now would you say the variation will change? Is it different? नहीं ना? इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में अंतर क्या था? ये अंतर था. What is my true heading right now? This is my true heading. What is the magnetic heading right now? दोनों में फर्क क्या है? अगर मैं अपने जहाज को ऐसे बनाता हूँ, ये एकदम नीचे जा रहा है. Understand? No, I'm building a concepts. ठीक है? Now, what should be the true heading? ये exactly 180 है, ऐसे. तो 180 से थोड़ा सा कम है, 170 है. तो this heading, true heading is 170 degrees. कौन कहता है हाँ ये सही है? सब कहते हैं. ओके, ट्रू. अब इसी का अगर मेरे को मैग्नेटिक हेडिंग चाहिए तो अगेन व्हाट इज द डिफरेंस? अब कौन कहता है कि वेरिएशन सेम रहेगा चाहे मेरा जहाज किसी भी डायरेक्शन में जाए? अभी ये भ्रम मैं तोड़ देगा मस्त. जैसा फर्स्ट ब्रेकअप होता है ना, एकदम वैसे. अब मैं आपको दिखाता हूँ एक नया पर्सपेक्टिव. द गाइड शी टोल्ड यू नॉट टू वरी अबाउट. हम अभी ना अर्थ को केवल एक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं. अब हम पर्सपेक्टिव शिफ्ट करते हैं. हम हमेशा तो इक्वेटर पर नहीं रहेंगे ना खड़े होके. ऑफ कोर्स हम शिफ्ट करेंगे. व्हाट इफ आई सेड दैट मैं एकदम ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के ऊपर खड़ा. हाँ खड़ा हूँ, एकदम ऊपर खड़ा हूँ, एकदम लाइक एकदम टॉप पे और थोड़ा सा किनारे. तो अगर आपको देखना हुआ तो ये मेरा अर्थ, ये मेरा नॉर्थ पोल है ना, ये मेरा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल. मैं इसके एकदम ऊपर नहीं हूँ, मैं हल्का सा ग्रीनलैंड साइड ही हूँ. तो मेरा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल यहाँ पे है, ठीक है. और मेरा जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो मेरा कनाडा का है. कनाडा, कनाडा पे आता है. हाँ, मिनी पंजाब. ओके, सो दिस इज माय कनाडा. नॉर्थ पोल से 750 नॉटिकल माइल दूर नॉर्थ कनाडा में कहीं इधर होगा. ये मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, बराबर. और ट्रू नॉर्थ पोल दिख रहा है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल सबको दिख रहा है ना, पक्का? अच्छा, अब यू हैव टू ऑप्शंस. या तो आप चाहते हो कि मैं ये सेम डायग्राम नोट्स में पेस्ट करके इसी पे अपनी कलाकारी करूं. नंबर 2, मैं खुद से ये चीज वहां पे बनाऊं. नंबर 1 और 2, जैसे जैसे वोट्स मिलेंगे वैसे वैसे काम होगा, तो थोड़ा जल्दी प्लीज. इसमें ही देख लेते हैं. इसमें हाँ इसमें करना है. चलो ठीक है. इसमें पता है थोड़ा मेसी हो जाएगा. रुको, रुको, रुको. ग्रिड लाइंस का कोड है. इसकी पोजीशन याद कर लो. ये बीच में जो कर्व है ये मेरा नॉर्थ पोल है और कनाडा तो मैं अपने मन से कहीं मान लूं. ठीक है, ठीक है, आ जाओ. तो दिस इज माय नॉर्थ पोल.
ये मेरा जोग्राफिकल नॉर्थ पोल है और मेरा मैग्नेटिक पोल है कहीं इथे। करेक्ट? पक्का? डन। सेव। आ जाओ। एक जहाज है जो ऐसे जा रहा है। मुझे बोला ट्रू डायरेक्शन बताओ, मैं बोला 090। मुझे बोला मैग्नेटिक बताओ, मैं बोला 130। कौन क्लियर है यहाँ पे? रीजन है। यहाँ तक तुम इस चीज से क्लियर हो तो आगे बहुत अच्छे से समझ जाओ। बट गाइस, व्हाट इफ पर्सपेक्टिव चेंज करके अगर मेरा जहाज ऐसे जा रहा है तो flying straight through these holes, then what? What is the heading of this aircraft now? What is the true heading of the aircraft? Give me the true heading. What is true north? 000. मुझे सबकी आवाज नहीं आई, इसका मतलब सबको समझ में भी नहीं आया। Okay, what is the definition of true north, Ayush? I ask you, what is the definition of true north? Sorry. What is the definition of true north? रिवाइज नहीं करा, कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था। We studied now about true That's north, so true directions. In the true directions, it was a thing given as true north. Notes हैं आपके पास? फोन में सेव करे होंगे? Open it. Tell me, Prithvi, what is true north? Sir, the direction that directly points towards geographical North Pole. Very nice, perfect. तो ये जहाज का ट्रू डायरेक्शन क्या होगा पृथ्वी अभी? I guess 00. Wow, you guessed it very right. 7 करोड़। ठीक है भाई। So true heading is 000. Why? Because ये बहुत छोटा दिख रहा है क्या? नहीं, देखो अगर आपको ये पीडीएफ मिलेगी ना तो अगर आप इसको हल्का सा जूम करोगे आपको दिख जाएगा। ठीक है, और अभी मैं इसको मिटाऊंगा। So the direction which points directly towards your geographical north pole is my true north. So can I say I am following true north right now? Who can say yes? कौन कहता है हाँ भाई सही कह रहा है भाई, ये बंदा पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है। नहीं नहीं, ये बंदा फैक्ट से कह रहा था, पढ़ाता तो हूँ मैं। अच्छा, ये फैक्ट सही है, कौन कहता है कि हाँ ये ट्रू नॉट फॉलो कर रहा है? तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरा ट्रू हेडिंग राइट नाउ इज 000? व्हाट इज मैग्नेटिक हेडिंग? देखो एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर मैं 2D में ड्रॉ करूं, तो क्या मेरी फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी? हाँ या ना? इसमें से अगर मैं किसी एक फील्ड लाइन को पकड़ूं, जैसे ये, अगर मैं इस चलते हुए जहाज में एक बार मैग्नेट सस्पेंड कर दूं, क्या वो ऐसे सस्पेंड होगा? इस डायरेक्शन में बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। सो क्या ये जहाज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के टुवर्ड्स जा रहा है? यस। तो इसकी मैग्नेटिक हेडिंग क्या है? 000। योर ऑनर, आई रेस्ट माय केस। मैग्नेटिक हेडिंग भी सेम है, ट्रू हेडिंग भी सेम है।
What is the variation? 0. यहाँ पे है variation as 0. किसको ये कंसेप्ट समझ में आया? किसको आया? हाथ खड़े करो। 2 को आया, 3 को आया, 4 को आया, बाकी ओके। अच्छा, किसी के मन में इस डायग्राम को लेके कोई सवाल आ रहा है? बी ओपन, बी ओपन। यू आर किड्स, नॉट मैम, आप नहीं, यू हैव किड्स, दे आर किड्स, गुड वन। सो कोई मन में सवाल आ रहा है, कुछ क्यूरियोसिटी कि क्यों हुआ ऐसा, कि हम कर क्या रहे हैं, कि क्या हो रहा है? मैम के मन में आ रहा है? Sir, is it happening only at the poles के और कहीं पे भी We ऐसा are हो not सकता at the poles. See, this aircraft is also flying towards magnetic north pole. Correct? This aircraft is also flying towards geographical north pole. But क्या इनका variation same है? Is it same? नहीं ना? It's not same. It's not same. तो इसका क्यों है? The answer lies in the line. same longitude. नहीं, not same longitude. Very It is, deep. अरे नहीं, यहाँ पे वो कंसेप्ट काम नहीं आएगा. It's all about magnetism. ठीक है? So अब इसको एक्सप्लेन करना ना, तो लेट मी फर्स्ट गो टू माय टेक्स्ट. हमने वेरिएशन के बारे में पढ़ा. वेरिएशंस की ना 2 लाइंस होती है. एक होती है मेरी आइसोगोनल्स और एक होती है अगोनिक. आइसोगोनल का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब क्या होता है? सेम. आइसोथर्मिक मतलब सेम टेम्परेचर. आइसोबारिक मतलब सेम प्रेशर. ठीक है? ओके. आइसोगोनल मतलब सेम एंगल. ठीक है? अगोनिक लाइन का मतलब क्या होता है? 0 वेरिएशन. इसे हम कहते हैं अगोनिक लाइन या अगोनल लाइन. 2 अलग अलग नाम होते हैं. ठीक है? सो मुझे बताओ कि यहाँ पे मेरा वेरिएशन सेम है या 0 है? 0, बट दोनों का ही 0 ही है. सेम ही हुआ ना? नहीं, हाँ. 0 and same is 2 different. Okay, can you guess, take a wild guess, what could be the minimum value of this variation? You guessed it right, 0. Now make another guess. What could be the maximum value for this variation? If the minimum 180 or 360. 180 or 360. Why did you say 360? Just to play on a safe side. Yeah, I know. So the maximum value of variation is 180 degrees. Can you tell me how should I draw my aircraft in this picture कि मेरे को 180 degrees का variation है? अब धरती को घुमा के देखो. Towards the red means the direction. Towards ऐसे the red. ऐसे. हाँ. Okay. But from below. From below. अच्छा ठीक है, समझ गया. ऐसे करेगा. हाँ. Okay. तो मेरा जहाज एकदम ऐसे जा रहा है ना नीचे. ठीक है. Now in this case आपको मतलब ऐसा मुंडी ऐसे ऐसे करनी पड़ेगी. ठीक है? अब इधर देखो. My geographical north pole is this. My magnetic north pole is this. तो अगर मैं magnetic north pole से देखूं, this could be 180. ठीक है? My magnetic heading could be 180. बट मेरी ट्रू हेडिंग क्या होगी? यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो सब लोग मुझे टेढ़ी करके बताओ, ये कितना होगा? True south. मेजर दिस एंगल ना बड़ी, द राइट एंगल कितना हाँ. होगा?
100 के अराउंड 100 के अराउंड है, 100 100 के अराउंड 105. 100 ले लेते हैं, ठीक है। अभी भी डिफरेंस मैक्सिमम नहीं है। कब आएगा डिफरेंस मैक्सिमम? कब? 350 पे. 350 पे? नहीं आएगा. नहीं, देखो आपकी अप्रोच थोड़ी सी मैं शिफ्ट करता हूँ। आप लोग क्या कर रहे हो, जहाज की हेडिंग के साथ खेलो, मैं कह रहा हूँ जहाज की पोजीशन के साथ खेलो। जहाज की पोजीशन चेंज करो कि वेरिएशन मैक्सिमम कितनी आपको मिल सकती है, उतनी मिल जाए। vertically upwards from uh, वर्टिकली ये पॉइंट है यहाँ से बी बी बी, बी यहाँ I से guess वर्टिकली yes. अपवर्ड। अब अगर आप देखोगे तो मेजरिंग क्लॉकवाइज फ्रॉम जोग्राफिकल नॉर्थ पोल आप जा रहे हो 180, करेक्ट। और यहाँ से मेजर करूंगा तो आप जा रहे हो कितना, 160, 20 डिग्री का फर्क है। Would it be at equator? Maximum. इक्वेटर नहीं, इक्वेटर में तो वी हैव सीन ना ऑलमोस्ट। सब कंफ्यूज हो गया भाई। चलो लेट मी शो यू अ 3 सेकंड हिंट, 3 सेकंड हिंट, 1 2 3। ओके चलो, सबको पता है कि मेरा ट्रू नॉर्थ यहाँ पे, मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पे। व्हाट इफ मैं डायरेक्शन जहाज का, पोजीशन जहाज का, क्या मैंने इसको ऊपर कर दिया ना। अब चाहे मैं इधर जाऊं या मैं इधर जाऊं, बात एक ही पड़ेगी। तो मैं इसी को, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं इसी डायरेक्शन को यहाँ पे आगे फॉलो करता हूँ, ठीक है। रिमेंबर व्हाट डिड आई से अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? एवरीवन अग्रीज? पक्का? क्या ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कि नहीं है? ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अगर मैं जहाज का ट्रू डायरेक्शन पूछूं आपसे, ट्रू हेडिंग क्या है, तो आप क्या बोलोगे? इट इज गोइंग टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। ट्रू हेडिंग वुड बी 0 0 0। कौन बोलता है हाँ? हाँ, इस बार आरसीबी जीत जाएगी। अगर मैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से मेजर करूं तो क्या है डायरेक्शन? बड़ी टेंस है मतलब। दोनों के बीच का अगर पॉइंट होगा तो 180 ऑपोजिट नहीं होंगे, होंगे ना भाई? तो ये कितना हो जाएगा? किसके मन में ये सवाल आया? किसके मन में ये सवाल आया ये ऐसे क्यों हुआ? हाथ खड़े करो। अच्छा, फिर से स्टिक टू फंडामेंटल्स। ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, स्टिक टू फंडामेंटल्स। व्हाट इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल अगेन, आयुष? क्या होता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ट्रू नॉर्थ? Direction in which direction that points towards The direction that points towards, directly towards geographical north. करेक्ट, दैट इज माय ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और माय ट्रू नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूं, माय एयरक्राफ्ट इज फॉलोइंग दिस ट्रैक और दिस हेडिंग, ओनली हेडिंग की बात करते हैं केवल, ठीक है। हेडिंग इज द डायरेक्शन इन विच द नोज ऑफ माय एयरक्राफ्ट इज पॉइंटिंग। लिख लो, heading is the direction in which the nose of my aircraft points। ठीक है, जिसको पता है उसको पता है, जिसको लिखना है वो लिख सकता है, ठीक है। heading is the direction in which the nose of my aircraft points। Now look at this picture, see what is the heading of my aircraft? It is pointing directly towards the geographical north pole. So my true heading is, or true direction is
कौन कौन कहता है सही है? व्हाट इज मैग्नेटिक नॉर्थ? How would Jackie Schroff define magnetic direction or magnetic north pole be? कुछ नहीं वैसे बताना. It would basically suspend the paramagnetic field and it would Align be कर going to देगा. the yeah. But अगर मैंने यहाँ पे बाहर मैग्नेट लिया तो वो क्या ऐसे अलाइन करेगा? करेगा. उसका नॉर्थ कहाँ मारेगा? उसका नॉर्थ यहाँ मारेगा. कौन बोलता है हाँ? कौन बोलता है हाँ? कि अगर मैंने ये जहाज के अगर मैंने ये डायग्राम अच्छे से बना दिया था तो मजा आ जाएगी. अगर मैंने जहाज के मैग्नेटिक नॉर्थ को अलाइन कर दिया डार्क ब्लू, damn details, so it will be pointing towards like this. तो मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ कहाँ है? यहाँ पे. कौन कहता है हाँ सही है? all the directions at all times are measured clockwise. तो अगर ये मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ है और इधर से मैं क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूं मेरे जहाज के नोज को, क्योंकि उसी को हम हेडिंग कहते हैं, तो ये हेडिंग कितनी बन गई? व्हाट इज माय मैग्नेटिक हेडिंग? 180. 180. 180. This is the maximum value of or for variation. किसको ये चीज समझ में आ गई? मुझे ड्रॉ करना है. किसी के मन में कोई भी डाउट है तो लेके मत जाओ, पूछ लो. बट सर उसकी हेडिंग तो 0 0 ही है ना. हाँ, हेडिंग थोड़ी सी हो रही है, बट जहां से हम मेजर कर रहे हैं वो चीज चेंज हो रही है ना भाई. देखो पृथ्वी, Sir, what if we change the true heading to 180 then? if we change the true heading in this case to 180, कर लेते हैं, करके देख लेते हैं. उत्सुकता है, जागरूकता है. ये देखो तो हर्मीस का लोगो बनेगा ये तो प्रस्ताव. अभी अगर हम मेजर करेंगे तो क्या मेरा जहाज का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है? हाँ. तो अभी मेरी मैग्नेटिक हेडिंग क्या हो गई? सर 0 0 0. What is that? What is true north? Direction pointing towards geographical north pole. In this case, this is the direction that is pointing towards true north. अब अगर ये मेरा ट्रू नॉर्थ है तो यहाँ से हेडिंग अगर मेजर करेंगे तो कितना आएगा? गेटिंग इट? पृथ्वी अब समझ में आया कि ऐसा अलग अलग क्यों है? कौन चाहता है कि मैं यहाँ पे ऐसे 2 डायग्राम बनाऊं? कौन चाहता है कि एक काफी है? वोट 1 और 2. 2. पृथ्वी से 2. चलो 2 बनेंगे. अब इसको भी ब्लैक से बना देते हैं, बिकॉज वंस यू गो ब्लैक यू कांट गो बैक. अगर ये मैग्नेटिक नॉर्थ है तो साउथ किधर हुआ? ये 180 वाला जो है वो साउथ हुआ. साउथ बड़ी हुआ, ट्रू नॉर्थ का साउथ हुआ, ये आपका साउथ. हमेशा साउथ नीचे नहीं हो सकता भाई. अच्छा एक बात बताओ, हाँ, है ना? अब एक बात बताओ, अगर आपको पता है नॉर्थ पोल पे, जैसे आप नॉर्थ पोल पे आओगे ना, कोई भी डायरेक्शन आप जाओगे वो आपका साउथ ही रहेगा. कोई भी.
कोई भी नॉर्थ पोल से किधर भी जाओगे वो साउथ ही रहेगा फॉर सम टाइम। ये देखो, ओह डैम, 33,000 फीट, ये है नॉर्थ पोल। ठीक है, ये इतना जूम इन क्यों नहीं हो रहा है? पहले तो हो जाता था। ओके, क्योंकि हम ऐसे देख रहे हैं। नॉर्शियस, ये आपका नॉर्थ पोल है। ठीक है, अब हमारे माइंड में ना एक ये बहुत ही थॉट बैठ गया है, और बैठना भी चाहिए क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि हमेशा जो सारे डायरेक्शन होते हैं ना वैसे होते हैं। नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। But Chase, what if I say that this direction is south, this direction is also south, this direction is also south, this direction is also south? मैं एक मेरिडियन पकड़ के चल रहा हूँ तब, एवे नहीं, एक मेरिडियन पकड़ के चल रहा हूँ, ये सारे डायरेक्शन साउथ है। क्यों? क्योंकि ये सारे डायरेक्शन को अगर आप पकड़ के चलोगे, आप फॉलो करते 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 साउथ पोल पहुंच जाओगे। दिस इज द कंसेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब मेरे डायग्राम में क्या है, अगर आप सब कुछ हो जाए तो यहाँ से, if this is a meridian, ठीक है, any direction that can take me towards south pole is my 180. Even these, even these, there is no north. You are at the north. यहाँ से कहीं पे जाओगे तो साउथ ही जाओगे और नॉर्थ जा नहीं सकते। तो दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव रीच्ड। जैसे इंसान का घर खत्म हो गया, फैमिली खत्म हो गया, बंदी जो छोड़ के चली गई, जॉब चली गई, अब यहाँ से ऊपर ही आ सकता है, नीचे नहीं आएगा वो। तो आप नॉर्थ पोल आ, जितना आपको नॉर्थ आना था आप आ चुके हो। अब यहाँ से कोई भी डायरेक्शन फॉलो करोगे तो साउथ ही जाओगे, साउथ ही जाओगे, अगर एक मेरिडियन को पकड़ के चले तो। बाकी लोग बहुत कंफ्यूज हो गए हैं भाई, ठीक है, जिन्होंने अर्थ नहीं पढ़ा है वो बहुत कंफ्यूज हो गए। कोई बात नहीं, उसका कोई ताल्लुक नहीं है याशिका, ठीक है, परेशान नहीं होना, कोई ताल्लुक नहीं है, मैं पढ़ा दूँ। ठीक है, तो इसका दूसरा डायग्राम भी बना देते हैं फटाक से। Sir, I thought it will be uh, 259 if it goes opposite. If it goes opposite, it will be 259. Sorry, yeah, 2 359 359 कैसे होगा? और 360 भी हो सकता। What is 360 और what, देखिए 360 and 000 मान लेते हैं सेम। तो मैंने आपसे यही सवाल पूछा ना कि व्हाट इज ट्रू नॉर्थ, डायरेक्शन विच पॉइंट टुवर्ड्स योर ट्रू नॉर्थ, ये डायरेक्शन यहाँ है। अब इसी को मैं रेफरेंस मान के अगर अपनी हेडिंग लूंगा तो ये 180 आ गया। ये जहाज का बार मैग्नेट कहाँ पॉइंट कर रहा है? ऐसे पॉइंट कर रहा है। मैग्नेटिक नॉर्थ कहाँ है? यहाँ है। इस हेडिंग से जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये 000 हो जाएगा, क्योंकि मैं इसी के टुवर्ड्स जा रहा हूँ। करेक्ट, सही है। मैं बनाने का वाला हूँ, ठीक है, ये रहने देते हैं। यहाँ पे एक छोटू सा पॉइंट होता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी लिख देता हूँ मैं कुछ चीजें। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ कि माई ट्रू हेडिंग इज 000 एंड मैग्नेटिक हेडिंग इज 180। ये 180 क्यों हुआ? इसकी वजह से मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है, सेम चीज
यहाँ पे मेरा ट्रू हेडिंग हो जाएगा 003 और मैग्नेटिक हेडिंग हो जाएगा, नहीं, ट्रू हेडिंग हो जाएगा 180, मैग्नेटिक हेडिंग हो जाएगा 00 because of the obvious reasons. Still, ये डायग्राम क्लियर है? हाउ वेरिएशन, द मैक्सिमम वेरिएशन इज 180 और वेरिएशन तो लिखा ही नहीं, जो पढ़ रहे हैं मेन चीज तो पता ही नहीं। तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये जो पूरी लाइन मैंने खींची है ना, ठीक है, अब एक आप चीज नोटिस करो कि ये मेरा फेज है जो नॉर्थ दोनों पोल्स के बीच का एरिया, इसके बाहर देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, पता है ये लाइन पे ना, जब तक ये पोल्स को टच नहीं कर रही दोनों ही, ये लाइन पे मेरा हमेशा वेरिएशन 0 ही रहेगा, हमेशा, until and unless I am between those poles. ये ऐसी लाइन है, प्रोवाइडेड कि मेरा जहाज इसी लाइन पे, ये ऐसी लाइन है कि मेरा वेरिएशन हमेशा 0 रहे, ठीक है, इसे हम कहते हैं अगोनिक लाइन, दिस इज माय अगोनिक लाइन। ठीक है, अब ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, अब तक का मेरा सबसे ज्यादा डिटेल्ड और सबसे ज्यादा सुंदर डायग्राम है ये वेरिएशन और अगोनिक, अदरवाइज सबको ऐसे समझा था। ये मेरा ट्रू नॉट है, मेरा मैग्नेटिक नॉट है, बीच में रहूंगा तो वेरिएशन रहेगी 180, बट अगर मैं एक ऐसे पॉइंट पे रहूं जहाँ पे मेरा जो डिफरेंस है ना बिटवीन दीज टू पॉइंट्स वो सेम है, थीटा सेम होता है ना मैम, हमेशा डिस्टेंस ऑफ गुण बढ़ता रहता है ना, थीटा से सेम रहता है ना? तो यहाँ पे मेरा जहाज चाहे ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, कैसे भी रहे, उन दोनों के बीच का जो वेरिएशन है वो हमेशा सेम रहेगा। ये मेरा ट्रू नॉर्थ है, ये मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये दोनों के बीच का एंगल हमेशा सेम रहेगा। ओके, so line joining places of equal variation, इसे हम क्या कहते हैं, आइसोगोनल। अगर मैं एक लाइन बनाऊं जो इन जगह को और इन जगह को ज्वाइन कर रही है, ये क्या लाइन हो गई, ये हो गई आइसोगोनल लाइन। और अगर मैं ये जगह को और ये जगह को ज्वाइन कर दूं, द लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ जीरो वेरिएशन इज नोन एज अगोनिक लाइन। इसका कोई स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, पे बहुत कूल डायग्राम हो रहा है। ओके, सो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, वेरिएशन लाइंस पढ़ लिया, आइसोगोनल लाइंस पढ़ ली, अगोनिक लाइन पढ़ ली, ठीक है, और so the maximum possible variation is 180 between true north and magnetic north. You guys are pretty exhausted, I get it,
क्लास इज ओवर फॉर नाउ। उसके बाद से हम ये टेबल सॉल्व करेंगे कि वेरिएशन निकालते कैसे हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएशन एंड व्हाट नॉट।